ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨ ਸਾਕਉ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ। ਵਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰਿ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ। ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਧਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਕਾਉ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਉ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ। ਸ਼ਬਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇਵਾ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੁਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਸਾਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਟਾਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਹਿੱਲਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
कि एक रब दी बंदगी वाले एक नाम दे रसीए महापुरख नूं आउण वास्ते एक नाम रसीए माँ दी जिहड़ी अपनी है पेट है उहदी जरूरत है, कुख है उहदी जरूरत है। हुण इन्नी बंदगी वाले जोड़े दी जिहड़ी कुख दी जरूरत है तां फिर उन्नी बंदगी वाला लभना पएगा। तख्त हिलिया अकाल पुरख दा ते अकाल पुरख लभदा है। इन्नी बंदगी वाले जोड़े नूं किहड़ा फिर ऐसा बंदगी वाला नूरे रमा जिहड़ा भेजिया जाए। तां फिर जदों निगाह मारदा है अकाल पुरख तां फिर हेमकुट पर्बत है जहाँ सप्त सरिंग सोबत है तहाँ उत्थे बैठा होया एक बंदगी करन वाला महान पुरुष जदों निगाह जांदी है ते अकाल पुरख पुजदे ने। उत्थे बह के फिर अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर उस जिहड़ा बंदगी दा मुजस्सम है उहदे नाल कुछ वारता करदे ने, कुछ गल्लां करदे ने। ऐ पुरखा तैनूं संसार ते जाना पैना है। ते उत्थे किहा सी हथ जोड़ आप जी दा हुक्म सिर मथे। पर उत्थे अकाल पुरख ने किहा सी ये कोई आम जिंदगी नहीं होवेगी। तैनूं पिता नूं जंग नूं तोरना आप पैना शहीद होण वास्ते, पुत्रां नूं जंग नूं तोरना पैना, माता दा बलिदान करना पैना, सरबंस वारना पैना। ये पहला ही बचन करके अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने फिर आप गुरु तेग बहादुर जी दे गृह विखे गुरु कलगीधर जी नूं भेजना कीता। अज उस गुरु कलगीधर दे लखते जिगर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, बजुर्ग माता गुजर कौर जी का शहादत का दिन है। तो अज उन्होंने आपां शरधा दे फुल भेट करने ने, उन्होंने आपां याद करने। आओ आरंभता करां। मैं आरंभता करनी है सबर शुक्र ते सिदक तो। गुरमुख प्यारिओ एक बार ना एक फकीर है जिसका नाम है इतिहास में सरमद फकीर आया। सरमद फकीर रब दा प्यारा है, रब दी इन्नी बंदगी कीती एक दिन अल्लाह दे विच अल्लाह हो गया। ऐसा सरमद फकीर ते जिस दिन उस अल्लाह दे विच नूर हो गया उस दिन ये सरमद फकीर खुशी विच खीवा हो के गाउंदा है, अनल हक दे आवाज़ दिंदा है। हुण अनल हक दा अर्थ है कि मैं खुदा हाँ, अनल हक। जदों ये गाया जिवें गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज एक बार मरदाने दे नाल समुंदर दे तल उत्ते जा रहे ने, पानी उत्ते जा रहे ने। मरदाने नूं कहंदे मरदानिया वाहिगुरू सिमर, वाहिगुरू सिमर दे उस पानी उत्ते क्यों जा रहे ने जिवें धरती ते तुरीदा है। हुण परमात्मा खुद जदों अल्लाह जांदा है ना उहदे रास्ते विच पानी जां अग रुकावट नहीं बनदी। जा रहे ने तब मरदाने ने कन ला के सुनिया गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज सोहंग 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 दा जाप करते जाते हैं। मरदाना दिल ही दिल अंदर सोचता है गुरु नानक साहिब जी ने आप वड्डा जाप किया है, मैनू वाहिगुरू दा छोटा जाप दिता है। जिस वेले ये गल हुई मरदाना सोहंग सोहंग जपण लगा, पानी अंदर डुब गया। जदों डुबण लगा तो आवाज़ मारी मेरे मालक सतगुरु गुरु नानक साहिब जी नूं। ते गुरु नानक साहिब कहंदे मरदानिया वाहिगुरू बोल। हुण वाहिगुरू बोलिया तो उस तरह फिर तुरिया जा रहा। बाहर जाके सतगुरु पुछदे ने मरदानिया की कारण होया, डुबदा क्यों जा रहा सी। मरदाना कहंदा महाराज मैं सोचिया आप सोहंग दा जाप करते हो, वड्डा जाप करते हो, मैनू छोटा जाप दिता है। गुरु नानक साहिब कहंदे मरदानिया जाप असल विच वाहिगुरू दा ही वड्डा है। सोहंग दा अर्थ है जिस दिन इंसान ते भगवान विच कोई फर्क नहीं रह जाता ना,
उस दिन फिर खुशी विच खीवा होया इंसान रब दे रूप दे विच ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਸੋਹੰਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਹੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅਨਲ ਹੱਕ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰੋਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰੋਮ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਪੁੱਛੀ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਕੋੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ, ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ 100 ਕੋੜਾ ਸਜ਼ਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਣ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਲਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਨਾਲ 1-2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਲੰਘਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿੰਦਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2 ਗਜ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢਕਿਆ। ਤਨ ਢੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਲੈਣ ਬੰਨੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਥੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 100 ਕੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਣ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਦਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਮੱਧ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਮਈ 1604 ਈਸਵੀ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਪਿਆਸੇ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਘੋੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੇਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਈਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद की तारीफ वो कम है। ये वचन उन्हें कहे सी। जदों ये वचन कहे एक मुसलमान फकीर ने, तो ये मुसलमान कट्टड़ शरीयत दे लोग तड़फ उठे। उन्होंने जाके कहते ने, तेरा आखिरी समा है, अजे भी समा है, अजे भी अपनी भुल बख्शाला, अल्लाह तेनू अपने चरणों में थां दे देवेगा। अजे भी ये कह दे कि जो मैं एक काफर भाव कलगीधर की सिफत की, ये मेरी सब तो वड्डी गलती सी। अजे भी समा है, आखिरी सुआसां ते बैठा अल्लाह यार खां जोगी एक गल कहंदा है। वो कहन लगा, ऐ काजी, ऐ मुला, जिस खुदा की तुसी गल करदे हो, मैं उसे खुदा की सिफत करदा है। ऐ काजियो, ऐ कहंदा मुला गल सुन लो। कहते जिस जिहड़ी गल तुसी अल्लाह दी कीती, मैं सिफत कीती, मैं सिफत करके प्रसन्न हाँ, तुसी गल ते एक जन्म दी करदे हो। ऐसे सतगुरु कलगीधर तो मेरे 100वां जन्म कुर्बान। आखो सतनाम। आखिरी समय दे उहदे वचन है।
अपने घर में बैठे दे अल्लाह यार खां जोगी दे। उन्हें गुरु कलगीधर की सिफत की ते इत्थे वो लिखदा जिस दम सतगुर आनंदपुर में नकीम थे, वो लिखदा है मुकीम थे, हमरा घर के कुछ लोग थे और कुछ नदीम थे। अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, कहंदा चार पिसर सतगुर के हमरा सवार थे। कहंदे इत्थे कहंदा इन्ना जिहड़ा सिख गुरु कलगीधर दे सपुत्र सी इत्थे मौजूद। कहंदा नाल नाल इस किले को घेरे हुए गनीम थे ते टूटे थे रिजक के दिल सिंहों के दुनीम थे। ये बचन इत्थे अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है। वो कहता जिस वेले सतगुरु गुरु कलगीधर जी आनंदपुर साहिब की धरती ते बैठे ने, जिथे सतगुरु गुरु कलगीधर साहिब जी महाराज है, उत्थे हमरा कुछ घर के लोग कुछ नदीम थे। हुण घर के लोग तो भाव माता गुजर कौर जी, महल सतगुरां दे माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, चाल फरजंद सतगुरां दे साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह जी ते फतेह सिंह जी, घर के लोग मामे भूआ दे पुत्र और कुछ नदीम थे ते बाकी जान तो प्यारे गुरसिख मौजूद सी जिहड़े सबर शुक्र ते सिदक विच खड़े हुए सन। उत्थे फिर वो कहता चारों तरफ किले को घेरे हुए गनीम थे ते चारे पास्यों जिहड़ा किला घेरिया होया सी ये मुगल फौजां, ये 22 धार दे राजे ये बैठे सी। भावें वो कहंदा टूटे थे रिजक के, कहंदे रिजक कोई नहीं सी, खाना कोई नहीं सी मौजूद कोले, पर दिल सिंहों के दुनीम थे। पर कहंदे दिल सिंहां दे चढ़दी कला वाले सन। आखो सतनाम। ते उस वेले जदों फिर सिखां ने कहा महाराज आपां किला छड्ड दईए, उत्थे कलगीधर जी महाराज कहंदे सिंहो कुछ समा रुको, चिड़ियों को आज मैं लड़ा दूंगा बाज से, मगर कोई फायदा नहीं है तुर्कों ताज से। उत्थे फिर सतगुरु कहंदे सिंहो कुछ समा सबर रुको, इन्हां दा विश्वास ना करो, कुछ समा रुको मैं चिड़ियां नूं बाजां नाल लड़ा देंगा, पर इन्हां तुर्कां दा कोई जिहड़ा विश्वास भरोसा ना करो। उत्थे कलगीधर जी महाराज ने कहा ते सतगुरां ने यह विखाउण वास्ते उन्हां नूं कहंदे सानूं गड्डा चाहीदा सी, अपना समान बाहर भेजना है। कुछ गड्डे मंगाए, गड्डियां उत्ते जो समान सी वाधू घाटू माड़ा चंगा सारा लद दिता गया। जुत्तियां जोड़े जो कुछ भी वाध घाट सी, कपड़े उत्तों सलीन का एक कपड़ा दे के ढक दिता गया। जिस वेले वो समान बाहर आया तो इन्हां दी फौज टुट के पै गई। गुरु कलगीधर जी कहंदे सिंघो इन्हां दा ईमान डोल चुका है, ईमान ते नहीं खड़े, अजे भी रुको। कुछ समा रुके ने, इन्हां ने दोबारा सौं पत्र भेजिया। जदों हुण दोबारा सौं पत्र भेजिया फिर सिंह कहंदे महाराज हुण आपां नूं आनंदपुर साहिब छड्ड देना चाहिए, क्योंकि उस समय तक गुरु कलगीधर जी नूं गुरु कलगीधर दे प्यारे विदावा भी दे चुके ने। ते सिंह माता गुजर कौर जी कोले गए, आप जी सतगुरां नूं कहो सानूं हुण आनंदपुर साहिब छड्ड देना चाहिए। ते फिर उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने 6 पोह दी शाम नूं आनंदपुर साहिब दा किला छड्डिया। अल्लाह यार खां जोगी उत्थे लिखदा है तारों की छाओं में सतगुर किले से रमा हुए। कहंदे तारियां दी छां दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहिब दी धरती नूं छड्डिया। गुरमुखो वो धरती जिसनूं गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने संजिया होवे, जिथे गुरु तेग बहादुर साहिब जी का सीस पहुँचया होवे, जिथे सतगुरु तेग बहादुर जी के सीस का संस्कार किया होवे, जिथे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने खालसे पंथ की साजना 5 प्यारियां दे रूप विच सीस लैके कीती होवे, वो घर छड्डना पै जाए आनंदां दी पुरी ते किन्ना औखा हुंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उत्थे जिहड़ा है वो घर छड्डिया। ते नाल कौन है? तारों की छाओं में सतगुर किले से रमा हुए, कस से कमर कर ते कमर कस्से करके सवार सारे जमा हुए, सारे जवान घोड़ियां ते असवार हो गए।
ते कहंदे हमरा चार पिसर सतगुर के हमरा सवार थे, जोरावर फतेह अजीर और जुझार थे। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह चारे सतगुर दे सपुत्र ते माता गुजर कौर दो महल ते बेअंत गुरु के प्यारे सिख इत्थों रवां हुंदे ने। ते जिस वक्त कहते जिस समय पहुँचे सतगुर सरसा नदी के पास, अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, चाहते ते वो बुझाना 12 पहर की प्यास। कहते 12 पहर की प्यास बुझाना चाहते सी, करके इशनान और पहन के नया लिबास, वाहिगुरु का जाप जपें और करे सपास, जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था। कहते खोल गुरु ग्रंथ बढ़ाना जरूर था। अल्लाह जो यार खां जोगी लिखदा है, वो कहते जिस वेले सतगुरु सरसा नदी के कंढे पुजे ते उस वेले अमृत वेला हो गया। कहते गुरु साहब जी कहते सिंघो अमृत वेला हो चुका है, इशनान करो ते नितनेम करो। आखो सतनाम। भाई दया सिंह कहता महाराज पिछे फौजां चढ़ पईयां ने, इत्थे शहादतां बहुत होणीਆਂ ने, आपां सरसा नदी पार कर लईए फिर नितनेम करांगे। गुरु साहब कहते नहीं, शहादत हो जाए ये भली है, पर गुरु परमेश्वर वाहिगुरु का नितनेम नहीं टुटना चाहिए। आखो सतनाम। इत्थे बह के सतगुरां ने आसा जी की वार का कीर्तन किया ते हुक्म लाया भाई उदय सिंह, हुक्म लाया साहिबजादा अजीत सिंह, हुक्म लाया बाबा जीवन सिंह, तुसी दुश्मनां नूं रोकना है। वो फिर ढाल बन दुश्मनां नूं रोकदे पए ने ते इधर दीवान लगा। हुण दीवान लगा है, आसा जी की वार का कीर्तन हुंदा है, जप जी दे जाप हुंदे ने, बाणी पढ़ी जाती है। ते जदों दिन चढ़दा है उधर फिर जंग के मैदान अंदर भाई साहब भाई उदय सिंह जी शहीद हुंदे ने ते शहीदी उहदी हुंदी है। ते बाबा अजीत सिंह दुश्मनां दे घेरे विच आउंदे ने, तां उत्थे बाबा जीवन सिंह रंगरेटा गुरु का बेटा वो फिर जांदा है, तलवार दे वार करके बाबा अजीत सिंह जी नूं अगे लैके आउंदा है। फिर सरसा नदी का जिहड़ा है सीन उहनूं चेते करो, चढ़ी हुई सरसा छल्लां पई मारदी है, उस दे विच गुरु कलगीधर जी ने अपना घोड़ा तोरिया, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्म किया कि आओ इस नदी नूं पार करो। जिस वेले पार करते ने इस नदी ने साडा बहुत बेशुमार कीमती जिहड़ा ग्रंथ है, बेअंत ग्रंथ इहदी भेटा हुंदे ने, बेअंत घोड़े आदक सिंह इहदी भेटा हुंदे ने, इत्थे शहादत दा जाम पींदे ने। जदों अगे निकलदे ने तां गुरु दा परिवार 3 जगह वंडिया हुंदा है। एक पासे माता सुंदर कौर, एक पासे माता साहिब कौर जी, नाल भाई मनी सिंह जी दिल्ली नूं जांदे ने, दूजे पासे श्री गुरु कलगीधर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, वड्डे साहिबजादे 5 प्यारे समेत 44 सिंह, अपने समेत 44 सिंह चमकौर गढ़ी नूं जांदे ने। तीजे पासे माता गुजर कौर, 2 छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी। आपां अज इतिहास साझा करना है छोटे साहिबजादियां दा, क्योंकि अज दिहाड़ा है। कहते उस वेले अल्लाह यार खां जोगी कहता है, वो कहता जोरावर और फतेह सिंह का अब बयां सुनो, बिछड़ के हाय पहुँचे कहाँ से कहाँ सुनो। कहते हुण बयान सुनो जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी का, विछड़ के कलगीधर तो परिवार तो कित्थे पहुँचे। हुण कहते वो सुनो। जा रहे ने माता जी दे नाल, तुरे जांदियां जांदियां दादी नूं पुछदे ने साहिबजादे, दादी से पूछा अपने सिपाही किधर गए, दरिया पर छोड़कर हमें राही किधर गए। कहंदे मां दादी साडे सिपाही कित्थे गए, ते तड़फा के नन्ही जिंदों को माही किधर गए, अब्बा भी बगा कर लश्कर शाही किधर गए। माता जी नूं पुछदे ने मां साडे सिपाही कित्थे है, साडी फौज कित्थे है, साडे अब्बा धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज कित्थे ने, 2 वड्डे वीर कित्थे ने। इउं तुरे जांदे पुछदे ने।
आपस विच गल्लां करदे ने। उम्र 7 साल ते 9 साल दी मन अंदर इस उम्र नूं वसा के सोचियो की गल्लां पए करदे ने बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। हुण गल्लां ये करदे ने, कहंदे जब रण अजीत जीत तशरीफ लाएंगे। कहंदे जदों रण नूं जित के बाबा अजीत सिंह जी आउणगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे। कहंदे जिस घड़ी अब्बा दे नाल गुरु कलगीधर जी दे नाल जुझार आएंगे ते कहण लगे उस वेले तब हम सबसे ही रूठ जाएंगे। कहंदे उस वेले असी सारियां तो रुठ जावांगे। कहंदे कभी माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। कहंदे किते माता किते पिता किते भरा सानू मनाउणगे। कहंदे उस वेले फिर बचन एक दूजे नूं करदे कहंदे ने हमें गलों से लगा कर कहेंगे बार बार मान जाओ हम नहीं मानेंगे जिनहार। आ गल्लां साहिबजादे करदे होए जा रहे ने ते जांदे कित्थे ने कम्मो माशकी दी कुटिया अंदर। कम्मो माशकी एक रब दा प्यारा पूर्ण गुरसिख है। उन्हें जदों वेखिया बुढ़ड़ी मां गुरु कलगीधर दी माता गुजर कौर जी नाल कलगीधर दे जो 2 छोटे फरसंद उन्हें अपनी कुटिया अंदर लैके आंदा ते बड़ी सेवा की। इन्नी सेवा की रज के सेवा कमाई। हुण इत्थे ही पहुँचदा है गंगू ब्राह्मण गुरु घर दा रसोईया। एक रात इत्थे रहिंदे ने, भाव 6 पोह नूं छड्डदे ने आनंदपुर साहिब, 7 पोह नूं परिवार विछोड़ा ते 8 पोह नूं कम्मो माशकी दे घर दी रात। हुण 9 पोह गंगू ब्राह्मण दे घर सहेड़ी लै जांदा है अपने घर। इत्थे फिर अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, कहंदे दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया, दुश्मन भी नहीं करते ऐसा वो काम कर गया। कहंदे जिहड़ा गंगू ब्राह्मण है भावें गुरु घर दा रसोईया है, कहंदे दुश्मन भी यह जा काम नहीं करता जिहो जा गंगू ब्राह्मण कर गया। घर विच माता गुजरी नूं, माता गुजर कौर जी नूं 2 छोटे साहिबजादियां नूं लैके जांदा है। जदों इहदी मां वेंदी प्रसन्न हुंदी है, इहदी घरवाली वेंदी प्रसन्न हुंदी है, चरणां नूं जिहड़ा है शीश नवाउंदियां ने क्योंकि गुरु घर दा नमक खादा है। ते जिस वेले गंगू ब्राह्मण माता जी कोले मोहरां वाली थैली वेखदा ईमान डोल जांदा है। अपनी मां नूं जाके कहंदा है अज रात अपने कोले है मां मैं जहर लैके आउणा है, इन्हां बच्चियां नूं मां नूं जहर पा दई ते आ धन अपने कोले रह जाएगा। आखो सतनाम। ऐसा गंगू ब्राह्मण पापी। मां ने जवाब दिता ऐ पुत्र ए उस कलगीधर दी माता है, उस कलगीधर दे पुत्र ने जिहड़े तेरे हत्थां विच खेडे ने, ये कोई होर नहीं, ये वो बच्चे है जिहड़े तेरे हत्थां विच खेडे ने। कहंदे पर जदों बंदा डोल जांदा है ना, जदों लालच विच आ जांदा है फिर कुछ दींदा नहीं। हुण रात पई, माता जी नूं नींद कित्थे आउंदी, जिहदा परिवार विछड़ जाए उहनूं नींद आउंदी है। रब दे शुक्र विच बैठी बच्चियां नूं गल नाल लाया है ते पई हुई अल्लाह दी बंदगी उहनूं सिमर रही है। एक गल होर कर देवां, जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दिल्ली नूं जाण लगे ना, उस वेले एक बचन कीता सी माता गुजर कौर जी दे नाल। जिस वेले तुरन लगे ते माता गुजर कौर जी नूं कहण लगे मैं चलिया सीस देण ते मैं जिउंदा वापस नहीं आवांगा। कहंदे उस वेले फिर माता जी ने कहा कि जे दुनिया नूं सुख देण खातर मैं अपना पति कुर्बान कर दियां, ये कोई सौदा महंगा नहीं। उस वेले माता जी ने यह वतन कहा सी ते जिस दिन सीस गुरु तेग बहादुर साहब जी का आनंदपुर साहब की धरती ते पुजदा है, उस दिन यही माता हथ जोड़ के अरदास करदी सी स्वामी तेरी सिक्खी केसां ते सुआसां नाल निभ गई,
ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਥੈਲੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗੂ ਇਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਲਾਲਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੁਰੰਡੇ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਰੰਡੇ ਗਿਆ। ਮੁਰੰਡੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ ਗੰਗੂ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਰੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਰੰਡੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਸਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਏ ਹੁਣ ਮੁਰੰਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਵ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਪਜੀ ਕਾ ਜਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਪ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਿੱਥੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਸ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਰਵਾ ਹੈ, ਰੂਹੇ ਰਵਾ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਨਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਗੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
लोग वेखते ने छोटे छोटे बच्चे ते माता गुजर कौर गिरफ्तार किए हुए ने, लाणतां पाउंदे ने लोग। जिथे उस गंगू ब्राह्मण नूं जिहड़ा कि नाल जा रहा है तां कि इनाम लवांगा, उथे इस मुगलिया सल्तनत नूं हुण कहंदे उथे पुजे ने। 10 दी रात नूं शाम नूं ये माता गुजर कौर जी दो छोटे साहिबजादे फिर इस सरहंद पुजदे ने, जिन्हों अज आपां फतेहगढ़ साहिब कहने। इन्हां नूं गिरफ्तार करके ना जदों लैके जाया जांदा है ते जानी खां मानी खां पुछदे ने सूबा सरहंद वजीद खां नूं कित्थे रखिया जाए, ते वजीद खां कहंदा ठंडे बुरज अंदर। ख्याल करियो आ धुंद दा समां ते कपड़ा कोई भी नहीं, ते ओह थां जिहड़ा गर्मी विच भी एसी वर्गा है, ते उस थां उत्ते सर्दी विच रखीए तां किन्ना ठंडा होएगा। ऐसा दर्द दिता गया बच्चियां नूं, माता गुजर कौर जी नूं उत्थे। ते फिर हुक्म यह होया कि इन्हां नूं कोई भी खुराक नहीं, प्रशादा पानी नहीं दिता जाएगा। ये भुख दे दुख नाल मन्नणगे, मैं इन्हां नूं मुसलमान बनाउणा है, वजीद खां कहंदा। ते इत्थे भी फिर रब दा प्यारा बोलदा है, जिथे दुश्मनां दी कमी नहीं उत्थे गुरु दे प्यारियां दी भी कमी नहीं। इत्थे एक गुरसिख महरा जात दे विचों वो जिहड़ा सिख है ना, अपने घर विच बैठा है, घर विच बच्चा है, घर विच माँ है, घर विच पत्नी है। हुण बैठा की कहंदा है, कहंदा भी होवे ना तां आपां मोती राम जी घरवाली नूं कहंदा गुरु दे सपुत्र ते माता जी इत्थे आए ने, जिन्ने क दिन इत्थे आए ने आपां कोई सेवा ही लुट लईए। भावें पता है अंदर जाण दी आग्या नहीं है। इन्हें दुध गर्म कराया, मोती राम महरे जी ने दुध गर्म करा के जो कुछ घर विच पिया सी माया वो एकत्र कीती ते लैके तुर पिया। जदों पुजदा है इत्थे जिथे माता जी नूं ते छोटे साहिबजादियां नूं गिरफ्तार कीता ठंडे बुरज अंदर, ते अग्यों सिपाही रोकदे ने उन्हां नूं, फिर वो रिश्वत दिंदा है ते वो कहंदे ने जल्दी मुड़ आई। ते फिर जांदा है, जाके मत्था टेकदा है, मत्था टेक के माता जी नूं कहंदा माता जी मैं गुरु का सिख निमाणा, मेरी सेवा नूं प्रवान करो। उत्थे फिर माता जी नूं दुध पिआउंदा है। पता है ये गल गुझी नहीं रह सकती भी जिस दिन ये गल सरकारे दरबारे पुजेगी तो मेरी मौत निश्चित है परिवार समेत, ये पता है। पर फिर भी पता होंदे होए गुरसिखां नूं किन्ने प्यारे ने गुरु, किन्नी प्यारी है सिੱਖੀ कि केसां ते सुवासां नाल निभ जाए, सेवा ते सिमरन अंदर निभ जाए। इस वास्ते अरदासां करदा है सतगुरु दे चरनां विच, ऐ पातशाह मैं आ सेवा करन दे समर्थ रवां, ऐसी किरपा करी, ऐसी बख्शिश करी। हुण 3 दिन सेवा करदा रहा, समा बीतिया। हुण पहले दिन 11 तारीख नूं सूबे सरहंद दी कचहरी सजी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिस वेले छोटे फरजंद गुरु कलगीधर दे कचहरी विच पुजदे ने ते उस वेले दीवान सुच्चानंद कहंदा बच्चिओ ये सूबा है सरहंद वजीद खां है, दुआ सलाम करो। उत्थे फिर जिहड़े छोटे साहिबजादे अंदर जाके कहंदे ने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों इउं फतेह बुलाउंदे ने तब जिहड़ा सुच्चानंद है कहंदा ये तुहाडे पिता दा दरबार नहीं, ये सूबा ये सरहंद वजीद खां दा दरबार है, इत्ते फतेह परवार नहीं, इत्थे ते दुआ सलाम परवान है। इस करके दुआ सलाम करो। ते बच्चे फिर दोबारा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दोहरांदे ने ते कहंदे ने कि सानू साडे गुरु पिता ने यही सिखाया है, जिहड़ा गुरु दी सिक्ख्या ते तुरदा है गुरु उहदा हथ पकड़दा है ते उहनूं भवजल तो पार कर दिंदा है। इस करके गुरसिख प्यारिओ आपां गुरु दे चरनां नाल जुड़ना है। हुण कहंदे उस वेले हुण पेश हुंदे ने कचहरी अंदर, इन्हां नूं बड़े बड़े लालच दिते जांदे ने, तुहानूं डोले दिते जाणगे, तुहानूं वड्डे वड्डे वजीर बनाया जाएगा,
बड़ा कुछ कहते ने, पर बच्चे गुरु कलगीधर दे सपुत्र ने ते कहन लगे ऐ सूबे सरहंद असी खून आ कलगीधर दे, असी शहीद होना तो जानते हैं पर धर्म छड्डना बिल्कुल परवान नहीं। कहते उस वेले सूबा सरहंद एक दिन की कचहरी तो बाद वापस भेजदा है ते नाल ड्यूटी लाउंदा है कि बच्चों नूं वध तो वध टॉर्चर करो ते वध तो वध इन्हां नूं समझाओ ताकि साडा धर्म ये प्रवान कर लैण ते फिर गुरु कलगीधर अपने आप ही नीवा हो जाएगा। आखो सतनाम। हुण टॉर्चर इत्थों तक कहिंदे ने छोटे बच्चों नूं नंगे धड़ विच रखिया गया ते उन्हां दे तूत दियां जिवें छटियां हुंदियां इहो जिहियां छटियां नाल टॉर्चर किया गया। केड़ा जिहड़ा है हथ कंडा सूबा सरहंद ने नहीं अपनाया ते उधर फिर कहन लगे कहते जी इउं नहीं मनते तो आपां कोई चाल चल लो। हुण चाल चलन लगे ने भी कल दी कचहरी अंदर जदों पेश होणगे वड्डा दरवाजा बंद होवेगा ते छोटी बारी खुली होवेगी। हुण अगला दिन आया 12 जिहड़ा दसंबर अपना 12 पोह, जदों 12 पोह आया तो बच्चों नूं पेश करने वास्ते सिपाही लैके आ रहे ने। उस वेले जिहड़े सिपाही लियाउंदे ने वो कहन लगे बच्चों समझाउंदे आउंदे ने कि तुसी दुआ सलाम करनी है, पर बच्चे चढ़दी कला विच ने। जदों आए उस मोरी कोले छोटे दरवाजे कोले की वेखदे ने वड्डा दरवाजा बंद है भी जदों अंदर लंघणगे सिर झुका के लंघणगे असी ताड़ी चक देवांगे। सिर झुका दिता गुरु दे बेटियां ने। जदों वेखदे ने हुण जोरावर सिंह फतेह सिंह वल तकदा है ते फतेह सिंह जोरावर वल तकदा है। जदों तकदा है की वेखदा है कहंदे सामने सारे बैठे ने। हुण कहंदे उस वेले फिर फतेह सिंह कहंदा जोरावर सिंह जी नूं चल फिर अगे। वो तुरिया उन्हें अपना पैर अंदर किया जुत्ती अंदर की ते फिर अगे लंघिया। सीस झुकण नहीं दिता ते कह दिता ऐ सूबा सरहंद तेरियां सब कुछ तू सानू देना चाहना लालच दिना है साडा जुत्ती दी नोक ते ठकराया। आखो सतनाम। पेश होंदे ने। पेश हो के जिस वेले कचहरी लगी हुई है उस वेले मलेरकोटिया नवाब शेर मुहम्मद खां पुजदा है जिहदा भरा गुरु कलगीधर जी ने मैदाने जंग अंदर शहीद किया सी। उन्होंने फिर ये सूबेदार सरहंद कहंदा है भी आ जिहड़ी सज़ा है इन्हां नूं बच्चिआं नूं ओह ये मलेरकोटिया नवाब देवेगा। जदों नवाब की यह गल आउंदी है तो नवाब की कहंदा है अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है कहंदा नवाब ने वचन किया बदला ही लेना होगा तो लूँगा इनके बाप से, खुदा महफूज रखे मुझे ऐसे पाप से। कहंदा वो कहन लगा कहंदा जे बदला ही लेना होया तो मैं इन्हां दे बाप तो मैदाने जंग अंदर लवांगा, पर ऐसे पाप तो मैनू मेरा खुदा बचा के रखे। उन्हें कहा यह सही नहीं है बच्चों नूं ते बुढ़ियां ते जुल्म करना, ये इस्लाम नहीं है, इन्हां नूं छड्डिया जाए। वो इउं कहंदा है ते उस वेले वजीद खां कहंदा भी ठीक है जे तुहाडी इहो राय है, भावें कि अंदर खाते ते उन्हां दी राय नहीं सी पर उपरों कह रहा है कहंदा जे इहो राय आ ते मैं छड्ड देवांगा। ते उस वेले सुच्चा नंद बोलदा है दीवान सुच्चा नंद की कहंदा है कहंदा ओ बच्चेओ जे तुहानूं छड्ड दिता जाए ते की करोगे। बच्चे कहन लगे उही करांगे जो साडे पिता ने सानू समझाया, जंगलों में जावांगे सिंह इकट्ठे करांगे ते उन्ना चिर तुहाडे नाल लड़ांगे जिन्ना चिर जां ते असीं सफल नहीं हो जाते ते या फिर शहीद नहीं हो जाते। आखो सतनाम। बस उत्थे सुच्चा आनंद फिर कहंदा है कहंदा ये सप दे बच्चे कदे मित नहीं हुंदे, इन्हां नूं छड्डना उचित नहीं है। ते उत्थे फिर सूबा सरहंद सज़ा सुणाउंदा है कल नूं इन्हां नूं नीहां विच जिउंदे चिण के शहीद कर दिता जाए। ये उत्थे वो वचन कहंदा है जिहड़ा सूबा सरहंद है ये हुक्म सुणाउंदा है। ते फिर कहंदे जिहड़ा वो नवाब मलेरकोटला वो खड़ा हुंदा है ते खड़ा हो के साहिबजादियां दे हक विच ये वचन कहंदा है कहंदा ये पाप होया है ते ये पाप इस नगरी नूं ढह ढेरी करवा देवेगा। ते वो कह के इत्थों कचहरी विचों चला जांदा है। हुण
शाम हुंदी है तो दोबारा फिर बच्चों नूं माता जी कोल भेजिया जांदा है। अगला दिन 13 पोह दा दिन, शहादत दा दिन। हुण जिस वेले माता जी कोलों सिपाही जाके बच्चों नूं लैण वास्ते जाके पहुँचते ने, उत्थे फिर माता जी बच्चों नूं बचन कहंदे ने। ते अल्लाह यार खां जोगी लिखदा है, कहंदे माता जी कहंदे आओ जाने से पहले तुम्हें गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर मुँह धुला तो लूं। कहंदे आओ जान तो पहला मैं तुहानूं गले तां ला लवां, केसां नूं कंघी करके मुँह तां धुआ लवां, प्यारे से सिरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दूल्हा बना तो लूं। माता गुजरी कहंदी आओ मौत लाड़ी नूं विआउण तो पहला मैं तुहानूं दूल्हे राजा ते बना देवां। इत्थे फिर माता जी माता अजीत कौर नूं याद करदे ने अपनी नूंह नूं, आ तेरे बच्चे अज मौत नूं विआउण चले ने। कहंदे जिस वेले फिर तैयार करके माता जी तोरन लगदे ने, थोड़ी वाट जाके बाबा फतेह सिंह पिछे झाकदा है ते उत्थे फिर माता गुजर कौर जी कहंदे ने पुत्र डर लगदा है। ते उस वेले बाबा जिहड़ा फतेह सिंह है कहन लगा दादीए डर नहीं लगदा, अज तक तेरे बिना रहना नहीं सिक्ख्या, असीं अज जा रहे हैं अपने दादे दी गोद अंदर, पर दादीए वेखी किते बहुता चिर ना बैठी नहीं मगरे तू भी आ जाई। आखो सतनाम। उत्थे फिर एक सिपाही कहंदा है, कहंदा दादीए अज तेरे पोते वापस नहीं आउणे। उत्थे फिर अगों दादी मां ने अगों माता गुजर कौर ने जवाब दिता, मेरा ना गुजरी मेरी अल गुजरी, इहो जेही कहानी मेरे उत्ते घड़ी घड़ी गुजरी, पल पल गुजरी। पहला पति दिता हुण पुत्रे दिते मौत कहे, तू भी चल गुजरी। गुजरी ताइयों लोग मैनू आखदे ने जो आई लई मैं झल गुजरी। माता जी उस सिपाही नूं कहण लगे मैनू गुजरी एवें नहीं लोग कहिंदे, जो कुछ आया मैं झल लिया। पहला पति दिता है हुण पोतरे दिते, ना पुत्र दा पता है ना वड्डे साहिबजादियां दा पता है ना नूहां दा पता है, पर मैं झलदी हाँ। ऐसी माता ने जदों ये बचन किया, हुण साहिबजादियां नूं लै गए ते जिस वेले हुण शहादत दा जाम पीना है, उत्थे फिर अल्लाह यार खां जोगी लिखदा एक बचन, वो कहंदा रब्बा फुट पए फुटण जोगियां नूं, जिन्हां पल विच बनाई दीवार फुट 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 दीवार उत्ते खड़े कीते गुलजार फुट फुट। कहंदे फुट फुट जिसम विचों लहू वगे फुट फुट, देखण हार भी रोंदे ने जार फुट फुट। कहंदे रोंदी कंध सरहंद दीए फुट फुट, ऐ पर रोए ना बरखुरदार फुट फुट। कहंदे ऐसी कंध हुण बनाउण वास्ते कौन चाहीदा है? जलाद। अज कोई भी जलाद तैयार नहीं जिहड़ा इन्हां बच्चिआं नूं इन्नी वड्डी सज़ा दे सके। ते उस वेले वजीद खां सुच्चा नंद नूं कहना है, कहंदा ऐसे कोई जलादां दा जिहड़ा प्रबंध कीता जाए। सुच्चा नंद जांदा है, उहदी जेल अंदर 2 समाणे दे बंदे जलाद जिन्हां नूं कह दईए वो मौजूद ने, जिन्हां दे उत्ते कतल दा मुकदमा है। शासन बेग ते बाशम बेग उन्हां नूं जाके पुछदा है, जे तुसीं ये काम करदे हो तुहानूं आज़ाद दिता गया है, तुहाडे जिहड़े भरा मार दिते गए ने, ते कहंदे कोई भी नहीं बचिया, तुसीं इकल्ले आ, अजे मौका है, तुसीं सिੱਖੀ छड्ड दिओ, इस्लाम कबूल कर लो। जदों ये गल कहिंदे ने उस वेले बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी एक आवाज़ एक सुर अंदर हो के सूबे नूं कहण लगे, सूबिया जबान संभाल के गल कर, अजे तक वो बंदा पैदा नहीं होया जिहड़ा साडे पिता गुरु कलगीधर नूं शहीद कर सके। आखो सतनाम। कहते जदों ये बचन कहे उस वेले हुण कंध बननी आरंभ हुई है। जिस वेले कंध बनदी 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 बाबा फतेह सिंह जी दे मुख कोले आई है ना, ते बाबा फतेह सिंह जोरावर वल झाकदा है। जोरावर सिंह दे अखां विच हंझू ने।
बाबा फतेह सिंह कहंदा वड्डे वीर मौत आई ते डर गया। उत्थे फिर ये बाबा जोरावर सिंह जी कहंदे आ छोटे वीर डरिया नहीं, ये हंझू इस करके है जदों जगत ते आउण दा समा सी मेथों पिछों आया, जदों दादे दी गोद अंदर जाण दा समय ते मेथों पहलां जा रहा। आखो सतनाम। हुण कहंदे वो दीवार बन गई, दीवारां अंदर चिण दिते गए। जिन्ना चिर ते जिहड़ा है होश विच रहे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जकारे गजाउंदे रहे। ते कहंदे उधर हिरदा फटिया आकाश दा, उधर हिरदा फटिया अकाल पुरख दा। ते कहंदे वो जिहड़ी कंध सी वो खेरूं खेरूं हो के डिग पई। जदों हुण वो जलाद वेखदे ने ते सूबा सरहंद नूं कहंदे अजे जिउंदे आ। उस वेले फिर सूबा सरहंद कहंदा खत्म कर दिते जाण। उत्थे फिर सूबा सरहंद हुक्म दिंदा है, ख्याल करियो ऐसे गुरसिख ने, गुरसिखी नाल प्यार किन्ना है। जिस वेले सूबे सरहंद दी आखिरी कचहरी अंदर साहिबजादे मौजूद ने, उत्थे डरावा दिंदा है सूबा सरहंद, कहंदा ऐ बच्चिओ तुहानू मार दिता जाएगा, तुहाडी बोटी बोटी कर दिते जाएगी, इल्लां आदक तुहाडियां बोटियां आसमान विच लैण जाणगियां, तुसीं बचोगे नहीं, नहीं तो मुसलमान बन जाओ। उत्थे फिर बच्चे जवाब दिंदे ने ऐ सूबे आ गल सुन, तुहाडा इत्थे नामो निशान नहीं रहेगा, जिन्नियां बोटियां साडियां उच्चियां जाणगियां ओडे ओडे इत्थे निशान साहिब झुलणगे। आखो सतनाम। जदों ये बचन करन वाले बच्चे अज जदों पए ने, बेहोश पए ने, ते उत्थे फिर जलाद कहंदे अजे मरे नहीं। उत्थे फिर सूबा सरहंद हुक्म करदा है ते फिर उस वेले कहंदे हिक्कां विच मार के ना को के शहीद किया गया। इत्थे आ सारा कट करके मार के हिक दे विच चाकू आदक छुरे ते फिर इत्थे को के माता जी दे ओ लाल गुरु कलगीधर दे दुलारे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी 13 पोह नूं शहादत दा जाम पींदे ने। उधर माता जी नूं ये खबर पुजदी है ते माता जी भी उस समय चौंकड़ा मार के बराजदे ने ते अपने सवास उस अल्लाह दे चरनां विच लै जांदे ने। उत्थे माता जी शहादत दा जाम पींदे ने। कई हुण कहंदे माता जी ने थल्ले छाल मारती, ये खुदकुशी सिख दा काम नहीं है। सिख चढ़दी कला वाला सबर शुकर ते सिदक विच परपक, सिੱਖੀ विच परपक, ते जिहड़ी होवई अल्लाह दी माता परमात्मा दी माता, वो फिर इउं नहीं। माता जी फिर कहंदे चौंकड़ा मार के बैठे, परमात्मा दे सिमरन विच बैठे ते अपना शरीर त्याग के कलगीधर दशमेश पिता दे माता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी दे चरनां अंदर पहुँच गए। इउं ये सारे छोटे साहिबजादे माता जी शहादत दा जाम पींदे ने ते सूबा सरहंद कहंदा है इन्हां दे धड़ नूं चक्कण नहीं देना, इन्हां दे धड़ां दा संस्कार नहीं कर देना। पर उत्थे गुरु का प्यारा रहिंदा है दीवान टोडर मल। हुण देखो दीवान टोडर मल कौन है? आलो अरख पिंड है ते कालड़ा पिंड दे विचाले इहदी जमीन है। जिस वेले गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आलो अरख पुजदे ने तां ये अथाह सेवा करदा है। ये टोडर मल जदों सेवा करदा है, गुरु साहब जी इहदी सेवा तो प्रसन्न हुंदे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी, ते ये हाथ जोड़ बेनती करदा है महाराज कोई सेवा बख्शो। उत्थे फिर महाराज कहंदे टोडर मल समा आवेगा, ये साडी सेवा संभाल के रखी, असी ये सेवा समा आवेगा ते तैथों लवांगे। आखो सतनाम। हुण इहदे उत्ते फिर किरपा हुंदी सतगुरां दी ते फिर बड़ी तरक्की करदा है, दीवान दे उच्च अहुदे तक पुजदा है ते अज समा आउंदा है ये सेवा करन लगदा है, ये पहुँच करदा है। सूबे सरहंद कोल पहला हुक्म ये आउंदा है जिन्नी धरती लैनी है उन्ने सोने दियां मोहरां विछा दे। ये कहंदा ठीक है। जदों विछाउण लगदा है सूबा सरहंद मुकर जांदा है, कहंदा नहीं जिन्नी तू धरती लैनी है उन्नियां मोहरां खड़ी करके लैनी पएगी। दुनिया दे इतिहास अंदर जे सब तो महंगी जमीन विकी है
तो वो अज तक ये सरहंद की जमीन ज्योति स्वरूप साहब गुरुद्वारा सुशोभित है, वो जमीन विकी है। अज तक वो बराबर की महंगी जमीन ही नहीं विकी। जिहड़ी जमीन इस टोडर मल ने साहिबजादियां दे संस्कार वास्ते खरीदी है, लई है, भावें इउं लई है। ते जिहड़े उस वेले देखो दुनिया का इतिहास पढ़िए ना, जदों कोई रहबर, कोई गुरु, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई प्यारा शहादत जाम पींदा है, उहदी संस्कार दे पिछे लखां लोग जाते हैं, पर सरकार दा भय इन्ना है। अज मगर कौन है जो संस्कार करन चले ने? 3 लए दिहाड़िए, एक आप टोडर मल जी दीवान, एक साहिबजादे नूं बुक्कड़ विच चक्किया, दूजे साहिबजादे नूं मोती राम महरा जी ने चक्किया, ते नाल लग के माता जी दे शरीर नूं 4 जिहड़े है, एक ते टोडर मल दी पत्नी है, दूजे पासे मोती राम महरे दी पत्नी है, ते नाल 2 जिहड़े दिहाड़िए कीते गए, फेर लैके गए ने उस स्थान उत्ते जिथे अज ज्योति स्वरूप साहब सुशोभित है। उत्थे फिर जाके इन्हां 3 शरीरां दा संस्कार किया गया है। समा आया बच्चों दे ओ बचन सत होए, सूबा सरहंद दा अज नामो निशान नहीं, ते जिन्ने भी उन्हां दियां बोटियां कह लो उच्चियां गईयां, उन्हें अज उत्थे निशान साहब फतेहगढ़ साहब दे अंदर झूलदे ने। आखो सतनाम। ये साडे शहादत जिहड़े शहीद ने, एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखिया, वो कहंदा सरसा नदी तो जंजां ने 4 चढ़ियां, किसे भैन ने घोड़ियां बोलियां ना। सरसा नदी तो जंजां 4 चढ़ियां, किसे भैन ने घोड़ियां बोलियां ना। सेरे सजाए नहीं किसे ने लाड़ियां दे, ते डगे ढोल ते लाए ढोलियां ना। वो कहंदा 2 चमकौर 2 सरहंद ढुके, 2 चमकौर जो सरहंद ढुके, कहंदे चंदू बिना विच कोई विचोलिया ना। कहंदे लावा मौत नाल कोकरी लै गए, पर वापस खैरिया परतियां डोलियां ना। ऐसे विआह दुनिया अंदर किते भी नहीं होए जिथे जंज चढ़ी होवे पर वापस परत के डोली ना आई होवे। ये मेरे कलगीधर दशमेश पिता दे पुत्रां दियां डोलियां चढ़ियां जड़ियां वापस नहीं परतियां। अज उन्हां दे शहीदी दिहाड़े मना रहे हैं। इक्को ही गल कह के समाप्ति करा। गुरु प्यारिओ, कलगीधर दा इतिहास कढ़ के वेख लिओ। पिता नूं तोरदे ने, पता है शहीद हो के ही आउणा है, मुड़ना नहीं, पर अखां विच हंझू नहीं। पिता दा शीस आउंदा है, पता है कि शीस ही है, धड़ किते होर है, पिता चढ़ाई हो कर गया, मैं अनाथ हो गया, पर अखां विच हंझू नहीं, रोए नहीं। पुत्रां नूं हत्थी जंग दे मैदान अंदर तोरदे ने, रोए नहीं। सामने खड़ के शहीद हुंदे वेखदे ने। 393 फट बाबा अजीत सिंह जी दे लगदे ने मैदाने जंग अंदर, जिहड़ा कि उस वेले दा जिहड़ा औरंगजेब दा अखबार है ना, शाही अखबार, वो ये लिखदा है 393 फट बाबा अजीत सिंह दे लगदे ने, पर कलगीधर रोंदा नहीं। जिस वेले नूरा माही छोटे साहिबजादियां माता गुजर कौर जी का पता लैके आउंदा है शहादत दा जाम पी गए, कलगी वाला रोंदा नहीं। पर गुरसिखो, अज जदों सिख कबर ते मत्था टेकदा है, सिख मटी ते मत्था टेकदा है, जदों सिख 10वीं खवाउंदा है, जदों सिख 14 खवाउंदा है, जदों सिख अपने आप नूं सिख अखवाउण वाला जगह जगह सीस सिटदा है, अज कलगीधर जारो जार रोंदा है। आखो सतनाम। की कहंदा होएगा? इन्हां सिखां खातर मैं कहा सी, इन पुत्रन कै सीस पै, वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार। ते सतगुरु जी ने जफरनामे विच जिक्र कीता सी, की होया मेरे 4 शहीद हो गए, कुंडलिया सप वीर खालसा अजे नहीं मरिया, ये बदला लवेगा। ते अज कलगी वाला की कहता होएगा? इन्हां खातर जिहड़े मटियां मसाणा जगह जगह ते मटियां बनाई बैठे, 2-2 इट्टां, ते उत्थे वीरवार छड्ड दिंदे, शराब पीण वाले मेरे वीर वीरवार छड्ड दिंदे ने।
पर गुरु का दिन याद नहीं। आखो सतनाम। साडे नालों साडे बजुर्ग चंगे जिहड़े पुरातन समय अंदर भावें अनपढ़ सी पर पोह दे महीने कोई विआह नहीं सी करदा। अज गेड़ा कढ़ लियो, अज छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिन है। अज पैलसां मूर दी लंघ के वेख लियो, शराबां मीट उड्डदे ने ते लच्चर गाने वजदे ने। ते दिन किहड़ा है? छोटे साहिबजादियां दी शहादत दा दिन। याद ही कोई नहीं। गुरसिखो पुराने बजुर्ग पोह दे महीने विआह नहीं सी करिया करदे, सानू पता नहीं सी ते असीं अज भी वहम बना के बैठे हैं भी पता नहीं किहड़ा वहम आ, क्या तो नहीं सी करदे। पर हुण पता लगदा है बुजुर्ग साडे नालों सियाणे सी। असीं भावें पढ़ लिख गए, पढ़ लिख के भी कमले हो गए, बुजुर्ग अनपढ़ भी सियाणे सी। क्योंकि इस महीने अंदर मेरे कलगीधर दा सारा परिवार ही शहीद हो गया। आखो सतनाम। तां नहीं सी करदे भी ये महीने अंदर ढोल ते डग्गा ना लगे, इस महीने अंदर शबाब कबाब ना उड्डे, इस करके वो करते नहीं सी। जरूरत है कलगीधर दे पुत्र बणीए। ते एक कवि बड़ा सुंदर लिखदा है, वो कहता कलगीधर दे पुत्र धीओ अमृत धारी होके जियो, अज लोड़ है बाणी ते बाणे वाले बनन दी। एक कवि बड़ा सुंदर लिखदा है, वो कहता ना कर मेरिया मना अड़ियां, कहंदा अड़ियां ना कर, कहंदे तेरा जीवन है दो घड़ियां, ते कहंदा जाके सौ जाएगा विच मड़ियां, जिथे सुंदर देहां सड़ियां, उठ चेते कर करतार नूं ते सिमर सच्ची सरकार नूं। वो कहंदा समां है कलगीधर दे असीं देना नहीं दे सकदे, जे कुछ करना है कलगीधर दी खुशी लैनी आ तां फिर सच्चे सरकार नूं सिमर। आ सच्ची सरकार बैठी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। बाणी ना जोड़, बाणे नाल जोड़, तेरा जीवन बने ते गुरु कलगीधर तैनूं प्यार करन। क्योंकि गुरु कलगीधर उहनूं प्यार करदे ने, रहनी रहै सोई सिख मेरा, ओह साहिब मैं उसका चेरा। कलगीधर कहंदा जिहड़ा रहनी विच परका पक है, जिहड़ा खंडे बाटे दा अमृत छक के त्यार बर त्यार चढ़दी कला वाला सिंह है, वो मेरा मालिक है, मैं उहदा चेला है। ऐसी सिक्खी कलगीधर ने बख्शी। अज भी गुरु का प्यारा प्रेम विच भिज के गुरु नूं याद करें। ते मैं टाइम तो बहुत हो गया होएगा, मैनूं पता भी नहीं कितना हो गया। एक गल कह के मैं आप जी तो खिमा मंग लवांगा। गुरु प्यारिओ कलगीधर खुश किन्ना है, कलगीधर प्रसन्न किन्ना है। गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप देखण नूं इउं प्रतीत हुंदा है भी गुरु ग्रंथ साहिब एक किताब है, पर गुरु प्यारो अज भी गुरु ग्रंथ साहिब अपने प्यारियां दे बचनां ते अज भी अपने प्यारियां कोले ढुकदा है। आखो सतनाम। एक ना बीबी एक ऐसे घरे विआही गई जिहड़ा घर गुरु नूं मनण वाला ही नहीं, जिहड़ा मड़ियां मसाणा ते जाण वाला है, होर बेअंत कबरां नूं पीरां फकीरां नूं मनण वाला है। उन्हां दे विआही गई। हुण जदों विआही गई वो गुरु दा नाम लैंदी, बाणी पढ़दी है, ते ओहदी सੱਸ जिहड़ी है वो कहंदी ये साडे घर नहीं चलना, साडे तां गुरु जिउंदे ने, आ जा तैनूं लै के जावां। ये तकरार पैदा हुंदी दोनां दे अंदर। हुण तकरार वधदी एक दिन इत्थों तक वध जांदी है। ओहदी सੱਸ कहंदी जे इन्नों ही तू कहनी आ मेरा गुरु, या ते कह खां आपदे गुरु नूं घरे चल के आवे, तेरा गुरु तां किताब है, मेरा गुरु जिउंदा है, हुणे सद लैनी आ। उत्थे फिर इन्हां दी जिहड़ी तकरार है वो फिर बेनती विच बदली। कहंदी 7 दिन तैनूं दित्ते, अपनी नूंह नूं कहंदी जे तां 7 दिनां विच आप चल के तेरा गुरु घर विच आ गया ते असीं भी गुरु वाले बन जावांगे, ते नहीं तैनूं भी गुरु छड्डना पएगा। आखो सतनाम। उत्थे फिर ये मां जिहड़ी लड़की है ये बह गई, बस सिमरन आरंभ कर दिता, ना कुछ खादा ना पीता, केवल एक अरदास विच जुड़ी है, ऐ मेरे मालका जे अज तू मेरी लाज ना रखी ते अज मेरे को सिक्खी छुट जाएगी। कहते जदों ये गल हुई अरदास पई करदी 6 दिन बतीत हो गए, 6 दिन बतीत हो गए, 7वां दिन चढ़ गया। जदों 7वां दिन चढ़िया तो मींह पैण लग गया, पुरातन समा सी, गुरद्वारा चोण लग पिया। हुण ग्रंथी सिंह कहंदा आपां गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप किसी महफूज जगह ते लैके चलीए। उत्थे फिर सिंह कहंदे ग्रंथी सिंह जी आपां किसी दे घर पुछ लीए, किसी नूं पुछ लीए आपां उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश कर देवांगे। ते उत्थे ग्रंथी सिंह कहंदा पुछण दी लोड़ नहीं,
एक बीबी 4 वजे इत्थे नित आउंदी है, बड़ी भावना वाली, बड़ी सेवा वाली है। मैनू पता उस घर में गुरु ग्रंथ साहब महफूज रहणगे। आओ गुरु ग्रंथ साहब का सरूप लैके चलीए, वेखियो गुरु ग्रंथ साहब किवें चल के जांदा है। उधर अरदास विच सुरत जुड़ी बीबी दी ते इधर गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथी सिंह समेत सिंह लैके सीस उत्ते चल पए ने। घंडियाल पई वजदी है, जदों घंडियाल नेड़े आई सुनदी है ते इन्नी प्रसन्न हो गई, उठी ਉਹਨੂੰ सेवा करन दा सुझदा ही कुछ नहीं, मैं करा की करा, कित्थे प्रकाश करा। प्रकाश करदी है ते मूहरे लम्मी डंडौत पै जांदी है, मेरे मालका तू किड्डा किरपा वाला है, आ मेरी लाज रख लई। आखो सतनाम। ते वो परिवार सिੱਖੀ नाल जुड़ गया। गुरु प्यारिओ, इन्ना गुरु ग्रंथ साहब अपने सिख नूं प्यार करदा है। गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िए ते एक मन एक चित हो के जुड़िए, गुरु का आसरा तकीए, गुरु बिना सारियां ढेरियां खत्म कर दईए। जदों इउं जुड़ांगे फिर गुरु ग्रंथ साहब चल के, क्योंकि जिहड़ा गुरु है ना वो इन्नी किरपा सिख ते करदा है, जदों किते गुरु का सिख याद करदा है ना उदों गुरु ग्रंथ साहब उत्थे पहुँचदा है। गुरु ऐसी किरपा करन वाला है। अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जह जह कर्म किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावै। उत्थे गुरु ग्रंथ साहब पहुँचदा है। इस करके जरूरत है गुरु साहब नाल जुड़ना करिए। कोई गुण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, आप जी की कृपा, धन गुरु ग्रंथ साहब की बख्शिश का सदका कुछ क विचारां की सांझ पाई, होइयां बेअंत भुलां की खिमा, गुर फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।